I think I am successful, but I think I'm not famous. I believe that I deserve more recognition than what I have right now, and I strive for more recognition than what I have right now. So, Aanchal, do you think digital content creators or social media influencers get their due or get their deserved respect? So, when we talk about due, there are two different types of dues. Like, one you said respect, and then there is the lucrative, money part. So I see this is a revelation for me also in the past 1 year that I've been doing this content creation thing. I think in terms of money, I think in terms of reach, in terms of, getting people's attention, it is fairly very rewarding. You are getting rewarded in good money. You are getting rewarded in people's attention. People from all around the world know you, and you don't really have to travel the world for that. From sitting inside your house, you can actually reach so many people. So in that sense, it is actually very rewarding. But in terms of respect, I do not think that people have yet understood the content creator economy so well by now. This is so unconventional and so new for everyone, including the creators themselves, that you just don't know how to get into that best practices zone to demand or command some type of respect. So people still are like figuring out. They think that most content creators are influencers, and they're just freeloaders. They just want things for free, and then there is literally no hard work being put. You're just clicking photos, making videos, and it's just like a random hobby. So I think people have yet to people need to come to that understanding that it is actually a job as any other job, and it deserves the respect that any other job does. तो सिर्फ एक रिंग लाइट खरीद ली है और फिर घर पे वीडियोस बना रहा है या बना रही है, एंड देन द पेरेंट्स नहीं मतलब मेन में कुछ और करता है या करती है या फिर यही है? तो क्या ये सवाल कभी आया है? पता है मुझे, दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन दैट यू आस्क. जो पेरेंट्स हमारे पहले पूछा करते थे ना कि क्या इंस्टाग्राम पे वीडियो बना रहे होते हैं या फिर यूट्यूब पे वीडियो बनाते रहते हैं, उनको पता नहीं है कि क्या क्या चीज़ है ये जो बच्चे कर रहे हैं. मुझे ऐसा लगता है कि अब कई पेरेंट्स ने और कई उन एज ग्रुप के लोगों ने इनफैक्ट इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है कि दिस इज समथिंग दैट is actually very lucrative, and this is something that people can do because of the pandemic also, because they found their family members doing something and getting something out of it. जैसे मेरी मम्मी बहुत एक्साइटेड रहती है अब कंटेंट को लेकर. मेरी मम्मी खुद भी कई बार मेरे वीडियोस में आती है, खुद भी वीडियोस बनाना चाहती है. वो मेरे पापा भी बहुत एंजॉय करते हैं वीडियोस में आना. एंड आई थिंक जो हमारे पेरेंट्स वाला जनरेशन है ना, ये हमसे ज्यादा कंटेंट कंज्यूम करता है. आप अगर देखो तो कई बार फेसबुक पे हमारे पेरेंट्स वीडियो स्क्रॉल कर रहे होते हैं, यूट्यूब कर रहे होते हैं, व्हाट्सएप पे उनको. तो हम जो इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, जो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं ना, वो सारा कुछ उनको व्हाट्सएप पे डिलीवर होता है किसी ना किसी तरह से. सो दे आर ऑल्सो कंज्यूमर्स ऑफ द कॉन्टेंट. दे नो कि समवन इज डूइंग दिस. तो मुझे ऐसा लगता है, पता है, ये जो नोशन चल बैठा है ना कि रिंग लाइट खरीद के आप कैमरे के सामने नाचने लगे तो कॉन्टेंट क्रिएटर बन गए क्या. आई पर्सनली थिंक दिस इज कमिंग फ्रॉम अ लॉट ऑफ जेलसी. आई थिंक कई सारे लोग ऐसे हैं जिनको ये चीज़ करनी है, बट दे फाइंड देमसेल्व्स टू बी वे अबव ऑल ऑफ इट. दे थिंक दैट दिस इज समथिंग बीनीथ देम, और दे थिंक दैट दे माइट नॉट नो कि उनका क्या टैलेंट है जिसे वो शोकेस कर सकते हैं, फिर उनमें कोई टैलेंट है तो वो कैसे कर सकते हैं. तो इट्स एक्चुअली अ फाइट बिटवीन योर हार्ट एंड योर माइंड, दैट दिस इज समथिंग विच विल हेल्प यू, बट maybe you're scared of success. It's a very known phenomena that you think कि अगर मैंने YouTube पे डाल दिया वीडियो और चल गया, I will be successful, I'll have to do it more. अगर मैंने YouTube पे डाल दिया नहीं चला तो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे, जो कि हमारा वो 4 लोग कहेंगे वाला सिंड्रोम रहता ही है. तो मुझे लगता है कि ये जो रिंग लाइट वाला ये जो चल बैठा है ना, ये तो आई थिंक ये तो जेलसी से ही आ रहा है. दिस इज माय पर्सनल ओपिनियन. फोमो को ईगो में कन्वर्ट कर दिया है. और जैसे जो आपने नहीं देखा था लास्ट ईयर, सब लोग टिकटॉक क्रिंज है और ये क्या बना रहे लोग. See, the main thing that YouTube और किसी भी ऐप का content creation का आप देख लो तो that has made expression democratic, that has made entertainment democratic, right? Earlier आपको सलमान खान के पास जाना होता था entertainment लेने के लिए, एक फिल्म देखने के लिए, और वो सलमान खान बनना बहुत लोगों का सपना है जो अधूरा रह गया, जो अभी तक उस चीज़ पे वो चीज़ सपना पूरा करने की कोशिश कर. बट जो इंटरनेट हमारे पास आया है, जो शॉर्ट वीडियो कंटेंट फॉर्मेट आया है, लॉन्ग वीडियो कंटेंट फॉर्मेट आया है, इससे हर आदमी सलमान खान है.
आप अपने घर से कुछ एंटरटेनिंग बना के डाल सकते हो, आप में अगर टैलेंट है तो आप लोगों को दिखा सकते हो, एंड दैट विल ओपन मेनी एवेन्यूज फॉर यू. सो वो जो क्रिंज है और नहीं करना है हमको, ये कौन करता है, आई थिंक इफ पीपल आर नॉट डूइंग इट, either they're jealous, I think, or they just don't know how to cash in. Do you think they don't have the right to speak, or do you think ये वही critics होते हैं कि जो those who can't make films then critique them, तो ये वाला, do you think that? I think see critics तो हर जगह आ जाते हैं, ठीक है. बनी हुई चीज को खराब या अच्छा कहना बहुत आसान होता है. मैं आपके सामने पोहे की एक प्लेट बना के रख दूंगी, आप कह सकते हैं शक्कर कम हो गई, सेव हो जाती थोड़ी, प्याज डाल देते. आप अगर वो बनाने जाओगे तो आपको नहीं समझ में आता है वो. तो क्रिटिक तो कोई भी कर सकता है. मैं भी क्रिटिक करती रहती हूँ चीज़ों को बैठ के. कई हमारे वीडियोस ऐसे होते हैं जो किसी चीज़ का हम मजाक उड़ा रहे होते हैं, तो वो तो बहुत ही आसान है. पर आई थिंक ये वहाँ से आ रहा है कि आपको कोई चीज़ इतनी नहीं है, यू नो, अ लॉट ऑफ पीपल फियर चेंज. कोई चीज़ इतनी नहीं है, आपको लगता है कि यार अगर हम भी वेव में बह गए तो मे बी वॉट वी हैव राइट नाउ is something that will give away for something that we don't know how is it going to go. So I think it's just like many people do not know how to take risks. And see, I was talking to this friend I think 2-3 days ago only, and we discussed that everyone is a content creator in some way, right? हम लोग कॉलेज में तो थिएटर सोसाइटी में होते थे, या हम लोग कुछ लिखते थे, ब्लॉगर होते थे, स्टेटस अपडेट्स डालते थे, व्हाट्सएप पे भी आजकल स्टेटस अपडेट डालते हैं लोग. तो कंटेंट तो सभी क्रिएट कर रहे हैं. इट्स जस्ट दैट यू आर सिलेक्टिवली पब्लिक. या तो आप अपने 200-400 दोस्तों के लिए बना रहे हो, या तो आप 2 लाख 4 लाख लोगों के लिए बना रहे हो, या 2 मिलियन 4 मिलियन या उससे ज़्यादा जो भी आपकी रीच बनती जाती है. तो आप कर रहे हो वो, बट ये है कि आप में कितना, मतलब आप कितना ज़्यादा उससे अचीव करना चाहते हो, या फिर आप में कितना कॉन्फिडेंस है और कितना आप निडर हो कि चलो यार लेट्स पुट आवरसेल्व्स आउट देयर एंड वी विल सी व्हाट कम्स. वैसे तो किसी इंदौरी के पोहे बनाने पर कोई क्रिटिक करने वाला जिंदा रहेगा नहीं, और वो परफेक्ट ही बनते हैं. लेकिन यू मेंशन्ड फियरिंग चेंज. जाहिर सी बात है कि कभी आपने ये सोचा नहीं होगा स्कूल कॉलेज में दैट यू वांट टू बिकम एन इन्फ्लुएंसर, यू वांट टू बिकम अ नेम दैट हैज़ एन इम्पैक्ट थ्रू डिजिटल मीडिया. शायद तभी डिजिटल मीडिया था भी नहीं इतना प्रोलिफिक. व्हाट मेड यू चूज दिस, और व्हेन डिड यू काइंड ऑफ डिस्कवर कि नहीं ये ही करना है? क्योंकि you have done television as well. Yeah. तो क्या कहीं ऐसा है कि failed actors then turn to digital media and it is there, as you said, risk free होता है, या ये perspective जो है, is it that, or how did you discover the creator or the social media influencer within you? So बाकी सब लोगों की तरह मुझे भी कॉलेज में नहीं पता था कि आगे जाके क्या होने वाला है. मैं छोटे शहर से भी हूँ, मेरा कॉलेज इंदौर में हुआ है, तो इतनी ज़्यादा हम लोग को चीज़ें पता नहीं थी कि बाहर क्या क्या हो रहा है, बॉम्बे में लोग किस तरह की जॉब्स कर रहे हैं, या फिर दिल्ली में क्या चल रहा है, या फिर देश के बाहर क्या चल रहा है. तो उतना एक्सपोजर तो था नहीं. ये पता था कि ठीक है चलो ग्रेजुएशन कर लेते हैं, फिर MBA कर लेते हैं, फिर कुछ नौकरी वोकरी मिल जाएगी तो चल पड़ेंगे. बट ये तो, था. हाँ, बट ये एक चीज़ मुझ में बचपन से रही है कि मुझे आई wanted to be recognized and I wanted to inspire other women also who come from the same type of family, same background, same city, and same culture as me, to actually break out of all these norms. Because मैं एकदम मारवाड़ी घर की एकदम सबसे छोटी संतान हूँ. मेरे पापा के साइड से 16 बड़े भाई बहन हैं, मम्मी के साइड से मेरे 17 बड़े भाई बहन हैं. तो मैं प्रॉपर वैसी एक वो, और मैं सबसे छोटा बच्चा हूँ घर की, और ऊपर से लड़की हूँ. फिर मैं पूरे मारवाड़ी फैमिली में, हमारे यहाँ ऐसा रहता है कि बच्चे 20-22 साल के होते हैं तो शादियाँ हो जाती हैं उनकी, और सब कुछ ना कुछ पढ़ाई वढ़ाई कर लेते हैं, घर की कुछ ना कुछ चल ही रही होती है बिजनेस, वो उनमें ही इन्वॉल्व हो जाते हैं. वहीं हम लोग पैदा होते हैं, वहीं हम घर वालों के साथ रहते हैं, वहीं हमारी ज़िंदगी पूरी हो जाती है. which is, there is nothing wrong in it. If this is what you want to do in life, that is your personal choice. But what I wanted to do was I wanted to see कि बाहर क्या चल रहा है. तो मैं मुंबई आई थी. And what acting happened because I wanted to see कि ये भी क्या चल रहा है. See, I always feel very grateful that I am a very privileged person to be able to seek opportunities, have them, and have the cushion of falling back to my father when something goes, the other way. So I do not take that privilege for granted. I know कि मेरे पास एक privilege है कि मेरे पेरेंट्स जो है वो बहुत सपोर्टिव है, तो मैं उस privilege को अच्छे से यूज़ करती हूँ. I have never exploited it, abused it, but I know कि अगर मुझे भी एक्टिंग करना है, मेरा मन है, तो I can go and see. तो मैंने एक्टिंग की पर मुझे मज़ा नहीं आया. So क्यों?
See, the kind of opportunities I got, Utta, I thought that maybe, you know, at the end of the day, you want to be creatively satisfied with the things that you are doing, right? And I am a very anxious person. So अगर मैंने अपने दिन का पूरी तरह से यूटिलाइजेशन नहीं किया है, मैंने आज पूरा अपने आप को क्रिएटिवली एक्सप्रेस नहीं किया है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता. मुझे लगता है कि यार वेस्ट हो गया आज का दिन. तो जब मैं टीवी कर रही थी तो मेरे साथ वो बहुत बड़ी समस्या थी. मैं जाती थी, वो मुझे 4-5 लाइन दे देते थे, मैं वो बोल देती थी और मैं घर आ जाती थी. मुझे लगता नहीं था कि आज मैंने कुछ उखाड़ लिया है. पैसे आ रहे थे, बट दैट डजंट ड्राइव मी. So I wanted to be recognized since I was a very young child. I remember vividly my elder sister, my cousin was getting married, and someone had told me in her marriage that अब तुम्हारा ही number है. And I was very young. It was I think 2005 or 6 she got married. मैं 14-15 साल की रही होंगी तब. तो किसी ने बोला कि इसी का नंबर है अब 4-5 साल बाद. And I was like कि अभी कि मेरा नंबर ठीक है होगा, पर मुझे नहीं करनी है शादी. I want to do other things. I want to be, you know, maybe have my own house, maybe, you know, have some money of my own. So if something goes wrong in my life, I'll be able to, you know, do things. कि आपके पास इंडिपेंडेंस होती है तो आप डिसीजन अच्छे ले लेते हो अपने लिए, फिर आप किसी के दबाव में डिसीजन नहीं लेते. तो मैं वो करना चाहती थी. वो दैट वाज माय इंटेंशन ऑफ कमिंग टू बॉम्बे. फिर मैंने एक्टिंग वगैरह करना शुरू करी. मैंने अपॉर्चुनिटी, और तब जब मैं एक्टिंग करती थी तब भी मैं दूसरी कई चीज़ें करती थी. तब भी मैं जॉब कर रही थी एक यूट्यूब चैनल में. मैं उनकी कम्युनिटी मैनेज करती थी. मैं उनके लिए सोशल मीडिया पोस्ट वगैरह बनाती थी, कंटेंट बनाती थी. फिर मैं असिस्टेंट डायरेक्शन करती थी, एड फिल्म्स वगैरह में. आई वाज एन एडी, मैं वो करती थी. तो मैं दूसरी चीज़ें करती थी, क्योंकि एज एन एक्टर आपके पास फ्री टाइम बहुत होता है. आप 2 दिन शूट कर रहे हो, 4 दिन की छुट्टी है, तो वो डाउन टाइम जो होता है ना, वो मुझे यूटिलाइज करना होता था. क्योंकि मैं घर छोड़ के आई हूँ, मैं इंदौर में नहीं हूँ अब, मैं अपने पेरेंट्स के से दूर रह रही हूँ. तो मुझे हर दिन का कुछ निकालना है, हर दिन का मुझे यूटिलाइज करना है, जो मुझे ऐसा ना लगे कि यार मैं यहाँ क्यों पड़ी हुई हूँ. सो वैसे वहाँ से शुरुआत हुई. और जो फिर मैंने स्टैंड अप कॉमेडी डिस्कवर किया, जो मुझे इंदौर में पता भी नहीं था कि इज इट समथिंग दैट यू नो, जो कि एग्जिस्ट भी करता है, मुझे आइडिया नहीं था. मैं कुछ ज़्यादा, ये मतलब बहुत ही आयरॉनिकल है, पर मैं इंटरनेट पे ज़्यादा मैं देखती नहीं थी चीज़ें, और मुझे इंटरनेट का ज़्यादा आइडिया नहीं था जब मैं इंदौर में थी. आई थिंक इट वाज 2015-16 आई मूव टू बॉम्बे. तब से थोड़ा थोड़ा पता लगने लगा. तो मैंने स्टैंड अप कॉमेडी ट्राई की. डिजिटल क्रिएशन, मैंने आपको जो चीज़ कही ना कि वो जेलेसी वाली बात आती है, कि वो मेरे में भी थी. सो अंटिल लास्ट ईयर आई यूज्ड टू ऑल्सो फील कि यार हाँ ठीक है, वीडियो बनाने में क्या है, तो कोई भी बना सकता है, तो फिर मैं क्यों नहीं बना रही थी. कोई भी बना सकता है. हाँ, अप अंटिल द पैंडेमिक मैं नहीं कर रही थी वो चीज़, बट मैं सबको डिस करती थी अपने दोस्तों के बीच में. मैं ऐसे इंटरनेट पे नहीं करती थी. अपने दोस्तों के बीच में, अरे हाँ ये तो कोई भी कर लेगा, इस वीडियो में क्या फ़नी है, इससे ज़्यादा फ़नी तो मैं हूँ. तो मैं, किसको पता है कि मैं फ़नी हूँ. मैं अपने घर में बैठ के कुछ भी कर लूँ, मैं कितने अच्छे पापड़ सेक लूँ, किसी ने खाए तो नहीं है ना. तो जब पैंडेमिक हुआ तो बहुत सारे स्टैंड अप शोज लाइंड अप थे, सब कैंसिल हो गए. एक एक्टिंग गिग लाइंड अप था, कैंसिल हो गया. आई वाज गोइंग टू स्टार्ट एज अ क्रिएटिव strategist in a YouTube channel for film promotions and all, वो कैंसिल हो गया क्योंकि फिल्में ही रिलीज होना कैंसिल हो गई. सो सब कुछ बंद हो गया. एंड दैट वाज आल्सो द टाइम आई लॉस्ट अ वेरी इंपॉर्टेंट फैमिली मेम्बर. सो दिस इज आई थिंक मार्च, जब फर्स्ट हमारा लॉकडाउन लगा था मई में 2020 तब. तो आई वेंट बैक होम, सब एकदम हताश होके कि अब कुछ काम नहीं हो रहा है, कुछ पैसे नहीं आ रहे. ये एक भाई वो थी अगेन द प्रिविलेज कि घर पे है, पापा मम्मी खाना तो खिला ही देंगे. उतना था, वो था पता कि चलो घर आ गए हैं तो भूखे तो नहीं मरेंगे. वो चल रहा था. देन कुछ तो करना ही था. मेरे पापा मतलब मैं काफ़ी परेशान थी, जेन्युइन परेशान. तो मेरे पापा ने एक बात कही थी कि आप अगर रोते रहोगे ना तो रोते ही रह जाओगे. तो कोई चीज़ आपको बुरी लग रही है कि ज़िंदगी में मुश्किलें आ रही है, तो ठीक है थोड़े दिन हताश होना अच्छी बात है, बट यहाँ से कहीं तो जाना ही पड़ेगा ना. बैठे तो नहीं रहोगे यहाँ. और तुम्हारे अकेले के लिए तो आया नहीं है पैंडेमिक, पूरी दुनिया के लिए आया है. और तुम्हारे लिए तो फिर भी थोड़ा बेहतर है कि तुम खाना पीना तो खा पा रहे हो, अपने माँ बाप के पास सही सलामत आ चुके हो. तो कहीं तो यहाँ से जाना पड़ेगा. तो एक आर्टिस्ट, आप भी ये बात शायद समझ सकते हैं, एक आर्टिस्ट को क्रिएटिव एक्सप्रेशन जो रहता है ना, वो उसको रोज़ करना ही होता है. वरना वो हमारे लिए खाना खाने की तरह होती है. हमारी आदत होती है कि अगर हमने अपनी बात नहीं कही, हमने अपना आपको एक्सप्रेस जाहिर नहीं किया, तो हम अंदर ही अंदर परेशान हो रहे होते हैं. तो दैट पुश भी, एक होता है ना जब आप कॉर्नर हो जाते हो हर तरफ से, आपको भाई अब यहाँ से या तो आगे है या तो समाप्त है. तो वो कॉर्नर वाला मेरा हो गया था. एंड देन आई वाज लाइक कि अब तो भाई अब सब तो खत्म हो गया, अब यही करना पड़ेगा. तो आई स्टार्टेड डूइंग दैट. आई स्टार्टेड पोस्टिंग टेक्सचुअल जोक्स ऑन ट्विटर. ट्वीट मैंने करना शुरू किया. कई सारे ट्वीट्स मेरे बहुत अच्छे वेल रिसीव हुए, कई ट्वीट्स वायरल हुए, उनसे काफ़ी सारे लोग मुझे जानने लगे.
फिर मेरा स्टैंड अप से थोड़ी सी कम्युनिटी पहले से थी, जो लोग मुझे जानते थे कि स्टैंड अप करती है, हमें पसंद है, तो वो लोग मुझे फॉलो करते ही थे, तो उनसे भी थोड़ा मेरा वो बढ़ने लगा। और मैं कंटेंट पहले भी क्रिएट करती थी, जब मैं एक्टिंग वगैरह करती थी मैं कुछ कुछ छोटा मोटा करती रहती थी, पर वो वही था कि हाँ रैंडमली किसी दिन कर दिया, कंसिस्टेंसी डिसिप्लिन नहीं थी। फिर मैंने उसमें भी एक प्लेट्यू रीच कर लिया। मैंने पैंडेमिक के टाइम पे मीम्स वीम्स बनाना शुरू किए, जोक्स डालना शुरू करे, पर 20-22 हज़ार की फॉलोइंग पे फिर गाड़ी रुक गई कि अब नया चाहिए लोगों को कुछ। तब मैंने फिर एक दिन सोचा कि चलो कुछ वीडियोस बना के डालते हैं। मैंने कई वीडियोस डाले। अब बाय दिस टाइम लाइफ हैड टर्न्ड अराउंड फॉर मी। मुझे वापस से एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट की जॉब मिल गई थी, मैं वहाँ काम कर रही थी, अच्छी सैलरी थी, एंड आई वॉज प्लानिंग टू मूव अब्रॉड ऑल्सो, सो दैट वॉज ऑल्सो कमिंग अलॉन्ग। सब कुछ अच्छा चल रहा था। अब फिर मैंने कॉन्टेंट बनाना शुरू किया इन अ बेटर हेड स्पेस। तो मेरा कोई वीडियो नहीं चला। मैंने करीब 20-25 वीडियो डाले, कुछ नहीं चला। नोबडी लाइक डेट। ऐसे जो अपने दोस्त होते हैं ना, जिनको आप मैसेज करते हो तो वही बेचारे लाइक कर देते हैं कि अरे यार ठीक है, कुछ कर रही है तो मदद कर दो, कर्टेसी लाइक। वैसे हर वीडियो पे ऐसे 20-25-100 लाइक आ जाते थे। एंड देन आई फिगर्ड आउट कि क्या दिक्कत आ रही है। तो आई अंडरस्टूड दैट आई वाज नॉट बीइंग ऑथेंटिक। मैं वो कर रही थी जो चल रहा था, मैं वो नहीं कर रही थी जो मैं हूँ। तब वो इतना ज़्यादा जो मसाला होके जो फाइनली फिर मैंने एक वीडियो किया विच वॉज जस्ट मी टॉकिंग टू द कैमरा अबाउट माई फीलिंग्स ऑफ रैंडम थिंग्स। वो जो मेरा जॉनर है ना, वो चल गया। और फिर people started liking, people started finding my videos, including many notable people who actually came to Instagram and messaged me that, you know, we really like how you express yourself, which opened a lot of opportunities for me. Then I got my first paid collaboration, and that was the moment when I realized that, you know, this is actually very viable career option, and it is a safe career option in the pandemic. You don't have to go anywhere. You're just putting your talent on camera and putting it on the internet, and that is working for you, so why not? So the journey actually was 5 years. So when people say कि आंचल ने बस एक दिन वीडियो डाल दिया और चल गया और now she's, you know, viral, अभी इसकी content overnight, yeah. It was not like that. It actually was like a 5-year journey where पहले तो मैं भी denial में थी कि नहीं ये तो फालतूगिरी है, अभी क्या करना है। But then I realized कि नहीं, फालतूगिरी नहीं है यार, हम लोग को भी करना है और हम करना चाहते हैं। It's just that हम खुद को झूठ बोलते रहते हैं ना कि नहीं हम नहीं चाहते ये करना। जैसे कोई प्यार में धोखा देके चला जाता है तो हम कहते हैं कि अरे वो तो आदमी खराब था। हमको पता है अंदर से कि हमको वो चाहिए, पर वो खराब था। खट्टे अंगूर हैं, अंगूर खट्टे हैं। तो पहला वो फेज था, फिर बनाया, कुछ चला नहीं। फिर वो होता है कि आप मार्केट में क्या चल रहा है वो करने की कोशिश करते हो। तो कई सारे ऐसे फेजेस आगे फाइनली एक वॉइस मिली, और अब तो टाइम आ गया कि अब उस वॉइस से भी आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ और ढूंढना पड़ेगा। बट बड़ा ऐसे 4-5 साल का रहा है। So this self discovery, this journey of figuring out कि नहीं ये किया जा सकता है, और ऑलमोस्ट एक रेवलेशन हो गया था कि नहीं, जिस चीज़ को हम डिस कर रहे हैं वही आखिरकार एक जरिया बन जाएगा. दिस वाज ऑब्वियसली नॉट foreseen or planned, just like the pandemic. After that, whatever you are today, would you consider yourself famous or would you consider yourself successful? So I think I am successful, but I think I'm not famous. I believe that I deserve more recognition than what I have right now, and I strive for more recognition than what I have right now. You know, Shahrukh Khan ने एक बात कही थी that I don't know if he said that or someone else, but I remember him saying that nothing is romantic about poverty, right? You make enough money so that people listen to you. And I believe that, you know, I have to be of a certain conduct in my life. I have to live my life in a certain way to inspire others and to get that recognition. Like if I can say multiple things. I can tell you right now, you know, time is money. Don't waste your time. You go for it, and you'll be like, yeah, you'll hear it, and then you'll move on with your life. But if I live my life in a certain way that can inspire other people, women specifically, I want to do that. So I am successful right now because for me, I just wanted success in a way that I can cut off myself from, you know, taking money from my parents. I can pay off my own expenses. I can have my own fund to, you know, take care of my expenses when I do not have an income inflow. And that I have achieved. So I am successful. That was just everyone's success definition is different. मेरे लिए वो था कि अपने खुद के मैं बिल भर दूँ, मेरे पास इतना इनफ पैसा हो कि कहीं मैं जाना चाहूँ, कोई नेक्स्ट मूव मैं करना चाहूँ, या फिर मैं काम करने से ही ब्रेक लेना चाहूँ कि अभी यार 2-3 महीने नहीं करेंगे, कुछ और करेंगे.
तो मुझे वो लिबर्टी अपनी लाइफ में हमेशा चाहिए थी, वो मेरे पास है, तो आई एम सक्सेसफुल, बट आई डोंट थिंक आई एम फेमस. People know me, but how many people know me? Some lakh, 1.5 lakh, something like that. I want more people to know me. I want more people to recognize me, not just know me. So fame is not what I seek. I seek recognition because I want to have a certain respect in my community that I have created with such hard work over the years, that I really want to, help those women who are watching me from their homes or who are, struggling with things in their life to actually take a step forward, because I have taken those steps in my life at every given turn, every point, in the last 10 years of my life, and I know how difficult it is. I know how difficult it is to step out of your house. I know how difficult it is to, break your generational culture that, okay, everyone was getting married at 20, you are 30, you're still not married. I know how difficult that is. But I know that what lies on the other side, it's choice. And I want women to have that. And for that, I need more recognition. So I don't think I'm famous right now. That's very modest of you. But you've underlined women multiple times while we've spoken. Why? Why that focus area? Because I have seen talented women not utilize their talent because they do not know how to do it. Because ever since they were, young, मतलब एक चीज़ होती है ना कि एक चीज़ होती है कि लोगों को कुछ करना नहीं होता, और एक चीज़ होती है लोगों को कुछ करना होता है, पर बचपन से उनकी इच्छा को और उनके टैलेंट को इतना मार दिया गया होता है ना कि उनको लगता है कि वो कुछ कर नहीं सकते. I have seen a lot of women feel like that, and I know that they don't deserve to feel like that. I know there are women who are talented, and now the world is so compact. आपके पास एक मोबाइल फ़ोन में आपकी पूरी दुनिया है. मैं खुद एक लाइव शो करती हूँ, उसमें मेरे गेस्ट थे कुमार वरुण. उन्होंने एक चीज़ कही थी कि लाइब्रेरी ऑफ अलेक्जेंड्रिया एक लाइब्रेरी है जहाँ पे दुनिया का सारी किताबें, सारा ज्ञान उसमें है. एंड नाउ इट इज़ सेड दैट आपके मोबाइल फ़ोन में उस लाइब्रेरी से ज़्यादा ज्ञान है. सो इमेजिन, can that not help a woman, achieve some, recognition, achieve some financial independence? So I really want women to know that, they have talents, and I really want them to execute it, find resources to do it, help them achieve that, help them become financially independent. Because when you are financially independent, you take decisions for yourself. You do not take decisions for your safety. आप मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड्स होती है ना, कि सबसे पहले आपको फूड, शेल्टर, वो सारी नीड होती है, फिर आपका रिस्पेक्ट, सोशल, वो सारा कुछ आता है. तो जो सबसे जो बेसिक नीड होती है ना, उसके लिए भी औरतों को दूसरों पर डिपेंड करना पड़ता है, क्योंकि उनको बचपन से दबाया जाता है. उनको वो चीज़ मतलब उनको जानने ही नहीं देते लोग कि ये सारी चीज़ें वो खुद भी अचीव कर सकती है. एंड दैट इज़ वाई इफ़ यू सी, हम पेट्रियार्की को इतना बोलते हैं, देयर आर मेनी विमेन हु आर द गेट कीपर्स ऑफ पेट्रियार्की, बिकॉज दे हैव बीन मेड लाइक दैट. आप देखो, आप कोई भी टीवी शो उठाकर देख लो, कोई ना कोई औरत, कोई विलन बनाया जाता है जो कि या तो जिसको सिर्फ बेटे चाहिए होते हैं, या तो ऐसे कुछ होता है. एंड दैट इज़ ट्रू. आई एम नॉट सेइंग कि ऐसा नहीं हो रहा है ऐसा, पर वाई वुमन? एंड फिर एक अंडरलाइनिंग, हर फिल्म में, हर सीरियल में एक अंडरलाइनिंग सब टेक्स्ट होता है कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है. ऐसा नहीं होता है. आप देखिए, एक आइडिया है जो बेचा गया है टू कि भाई हर पिक्चर में जो है एक हीरोइन रहेगी बेचारी जिससे हीरो प्यार करेगा, और एक विलन रहेगी, वो या तो सिगरेट पीती होगी, या तो छोटे कपड़े पहनती होगी, या तो मेकअप लगाती होगी, वो वैसी रहेगी, और वो इसकी दुश्मन है क्योंकि उसको भी हीरो चाहिए, इसको भी हीरो चाहिए. इन रियलिटी women do not want a hero. Women are hero themselves. They are capable of doing things. They just don't know. Because आपको बचपन से अगर बोला जाए, कोई एक बात आपके कान में कही जाए, एक बार तो सुनाई देगी ना. दैट इज़ द प्रॉब्लम. आई वॉन्ट वुमेन टू गेट रिड ऑफ दैट. और मैं देखो, अकेली तो बहुत कुछ कर नहीं सकती. 7 बिलियन की पॉपुलेशन है दुनिया में, सब कुछ तो बदल नहीं सकती. थोड़ा कुछ कर सकती हूँ, उसके लिए आई स्ट्राइव. तो ये क्रांति का जो कथा बीज था, वो स्वयं के जो अनुभव हैं वहाँ से जन्म लेता है. एंड एज यू सेड दैट you've seen so many women suffer. I have seen women in my family like that. I have seen women my mother is so talented. My mother is so educated. She has so many degrees. She has helped my father, come from nothing to, establish a business and become like an overnight success, how people say. Even though he was also not an overnight success, there were times when
He did not have enough money. I still remember, I think when I was in school only, my father had bought like a 3,000 रुपए का पुराना किसी का चेतक स्कूटर वो खरीद के लेकर आए थे, जो कि पता नहीं ऐसे सेकंड हैंड भी नहीं था, 15-20 हैंड वाला स्कूटर था कि पता नहीं अब इस ओनर के बाद ये स्क्रैप में जाएगा. And he used to actually ride that. And from there to, where he is right now, that, his both, his son, his daughter, both are doing well, and he is doing well for himself, his family, and all those things. So that takes a certain amount of hustle from your family members as well. And that was my mom for my dad, right? So I know what kind of talent that she holds. Most of my jokes, if you see 50 of my jokes, I think 25 of them are my mom's. Yeah. And I have said this on record multiple times that most of my punchlines come from my mom, because that woman is so funny and so sarcastic in herself. She doesn't know all of that because she was never told. उनको पता ही नहीं है कि उनमें इतने सारे talents हैं, क्योंकि and she was the youngest बहू of a very orthodox मारवाड़ी family, तो वो एक दबा दिया जाता है ना आपको, वो उनके साथ हो चुका है. I do not want other people to go through that same shit. ऐसा नहीं है कि मेरी मम्मी कुछ बहुत ही बेचारी है, she has a good life, but she could be so much more. She could be so much more in terms of, what she is as an individual. So I really want to, there are other women in my family, who, my bhabis, my sisters, then my extended family, so many of them, so many people I just see around, women who were with me in college, who were topping the class, who were just getting good marks. I don't see them anywhere. I don't see them pursuing their dreams that they wanted to pursue. Did any of these women that you were very closely associated with, either family or friends, ever reach out to you after you became this revolution? So I'll tell you one. I'm not bragging. I'll tell you one thing. मैं ना हमेशा से थोड़ी सी पॉपुलर रही हूँ. मतलब अभी मैं इंस्टाग्राम पे मुझे कुछ लोग जानने लगे हैं क्योंकि मुझे इंटरनेट का सहारा मिल गया है. पर मैं स्कूल में भी पॉपुलर थी, मैं कॉलेज में भी पॉपुलर थी, मैं अपनी फैमिली में भी पॉपुलर हूँ, क्योंकि मैं हमेशा से अपने मन की करती हूँ. मुझे मेरे पापा ने और मेरी मम्मी ने वो टूल्स दिए हैं कि मैं अपने डिसीजन खुद ले सकूं, और गलत डिसीजन ले लूं तो फिर उनका खामियाजा भी मैं खुद ही भुगत सकूं. उतना कैपेबिलिटी मुझ में दी है उन्होंने. तो मैं हमेशा से वैसी रही हूँ कि ठीक है, अब 12th हो गया, अब बाहर चले जाएंगे कॉलेज करने. अच्छा ये हो गया, अभी ये करने का मन नहीं, कुछ और कर लेंगे, चलो कहीं बाहर पढ़कर आ जाएंगे. या फिर अब इन टर्म्स ऑफ हैविंग बॉयफ्रेंड ऑल्सो, आई हैव हैड अ बॉयफ्रेंड, एवरीबॉडी न्यू इन माई फैमिली. And this was a big thing to actually be publicly aware, क्योंकि जब मैं कॉलेज में थी तब वो मतलब बॉयफ्रेंड होना मतलब वो था कि चक्कर चल रहा है, किसका अफेयर है इसका, इसने तो खानदान का नाम डुबा दिया, वो सब. तो मेरे घर पे वो मेरे पापा मम्मी के साथ वो सब नहीं है. तो मुझे वो सब टूल्स दिए गए थे टू टेक माई ओन डिसीजन, विच itself is like act and rebel in my family, in my extended family, or in the circle that I was earlier. Now तो they have also changed, पर पहले ऐसा था. तो मैं हमेशा से वो बच्ची रही हूँ. एंड वो इंसान ना औरतों को पसंद आता है, बिकॉज कहीं ना कहीं अंडरलाइनिंग उनके ना अंदर एक वो रहती है कि यार हमें भी करना था, हमें भी जाना था. आई ऑल्सो वॉन्टेड टू डू दिस बट आई कुडंट डू इट. एंड नाउ दे वॉन्ट टू डू ऑल दोज थिंग्स फॉर देयर डॉटर्स. नाउ दे ऑल वॉन्ट टू डू टू टेल देयर सिस्टर्स. अ लॉट ऑफ पीपल रीच आउट टू मी फॉर एडवाइस ऑल्सो कि मुझे एक्टर बनना है तो मैं क्या कर सकती हूँ. तो अब वो तो मैं एडवाइस नहीं दे सकती कि आप एक्टर बनना है तो आप क्या कर सकते हो. अगर मुझे पता होता तो मैं खुद ही अभी कटरीना कैफ होती. पर मैं ये आपको ज़रूर बता सकती हूँ कि आप अपने अंदर अपना सब्सटेंस कैसे रख सकते हो कि बाकी की चीज़ें जो है वो आपको अफेक्ट ना करें. तो आप यू वॉक मार्च अहेड विथ योर हेड हेल्ड हाई, एंड you sleep well. I did my best. If things did not turn out as expected for me, that is life. You mentioned humor, comedy, which is a very difficult, जो 9 रस हैं उनमें से सबसे मुश्किल रस कहा जाता है. उसको यूटिलाइज करके आपने एक मकाम हासिल किया, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, which was an achievement, a goal, a freedom of sorts for a lot of people, yeah, and which you achieved very systematically, meticulously. But what you do you think, is it a skill or is it a talent? Skill which could be learned, taught, and could be handed over with tools and techniques, as opposed to a talent which is gifted to you since
birth? So, see, I think anything can be learned. If it's comedy, other 8 rasas of Navrasa, कुछ भी है हम सीख सकते हैं अगर हम अपना ह्यूमन माइंड एक पैंडेमिक को भूल गया है यार, पूरे दुनिया पे इतनी बड़ी क्राइसिस आ रखी, हम उस चीज़ को भूल गए, आगे बढ़ गए, हमने उस चीज़ पे मजाक करना शुरू कर दिया, उस चीज़ से हम लोगों ने बिजनेस क्रिएट कर लिया, एक दूसरे को मदद करने के टूल्स बना लिए, वो सब कर लिया। तो इतना तो हम अपने माइंड को एक फोकस पे डाल सकते हैं कि हम कुछ भी चीज़ सीख ले, चाहे वो जोक लिखना हो, चाहे वो खाना बनाना हो, चाहे वो पेंटिंग करना हो। इफ़ वी शो अप फॉर आवरसेल्व्स एवरी डे, हम सीख सकते हैं, ये मेरा मानना है। पर मुझे लगता है कि ऑफ कोर्स टैलेंट इज समथिंग, बट आई थिंक टैलेंट इज ओवररेटेड। आप अगर अपना टैलेंट लेकर घर पे बैठे हुए हो, किसी को नहीं पता है कि आप टैलेंटेड हो। आप टैलेंटेड हो, बट विदाउट द स्किल दैट यू पुट इनटू दैट टैलेंट एवरी डे, इट इज नथिंग। आई थिंक so many notable people I think have said the same thing, that your success comes when you show up for yourself with your talent. And success is what, like 20% of talent, I think 80% is just showing up. See, I don't want to be like this like a critique or something, पर आपने आप ऐसे लोग देखते होंगे शायद, आप जिस भी तरह का आर्ट फॉर्म पसंद करते हो उसमें, जिसमें आपको लगता होगा कि यार नहीं यार, ये आदमी थोड़ा नहीं इतना जमा, या ये महिला इनका मेरे को इतना नहीं जमा। हाँ, पर वो फिर भी दे आर शोइंग अप फॉर देमसेल्व्स एवरी डे, दे आर क्रिएटिंग अ कम्युनिटी फॉर देमसेल्व्स, दे आर क्रिएटिंग money out of it, they're creating fame out of it, people know them for some reason, right? Because they're showing up for themselves, and that itself is a big talent, I think. क्योंकि आप, मुझे ये जो जीनियस वाला एक एरोगेंस होता है ना, ये टैलेंटेड लोगों में ना एक वो होता है अपने अंदर कि अरे हम तो इतना अच्छा करते हैं, ये तो कुछ नहीं कर रहे। तो तुम करो ना, फिर तुम नहीं कर रहे हो ना, तभी तो तुम जो कह रहे हो कि दूसरे लोग करे जा रहे हैं, वो इसीलिए हो रहा है ना। तो ये जो स्किल है ना, आई थिंक डिसिप्लिन इज वॉट मेक्स इट लाइक कि आपको पता है कि ये चीज़ मुझे रोज कंसिस्टेंटली करनी है। आज मैं अगर बैठी हूँ लिखने, मैं अगले 15 दिन नहीं बैठूंगी लिखने, तो मेरा वो लिखाई पे भी जंक लग गया है। ठीक है, आई कैन बी लाइक हाँ मैं तो कल भी लिख लूंगी, परसों भी लिख लूंगी, पर आई हैव टू राइट एवरी डे, एंड दैट इज हाउ आई वर्क ऑन माई क्राफ्ट ऑल्सो। क्योंकि आप 100 बार कोई एक चीज़ लिखते हो ना, तब वो 101वीं बार अच्छा लिखाता है, तो आपको वो चीज़ करनी है। और कॉमेडी, सी बाकी आर्ट फॉर्म्स का मुझे इतना नॉलेज नहीं है, कॉमेडी मैं करती हूँ, मुझे कॉमेडी का पता है। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि कॉमेडी जो है ना, अपना पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन बढ़ा के कोई भी सीख सकता है। कॉमेडी क्या है? पावर ऑफ ऑब्जर्वेशन है कि मैंने कोई चीज़ ऑब्जर्व कर ली और फिर उस पर मेरे दिमाग में क्या आया, उस चीज़ को मैं कैसे ट्विस्ट कर सकती हूँ, वो चीज़ मैं करती हूँ। मेरा ऑब्जर्वेशन एनेक्डोटल वो वाली कॉमेडी आता है, कोई भी इंसान ऑब्जर्व कर सकता है ना। अभी हम कुछ बात कर रहे हैं, आपने कुछ ऑब्जर्व किया है, आपने भी कुछ किया होगा। अब कॉमेडी कहाँ से आती है? लिव्ड एक्सपीरियंसेस से, कि भाई मैं रोज सुबह घर से नीचे उतरती हूँ, मुझे रिक्शा नहीं मिलता, आप भी उतरते होंगे, आपको भी नहीं मिलता, बट आपने उस चीज़ को अलग तरह से एक्सपीरियंस किया, मैंने अलग तरह से एक्सपीरियंस किया। तो जो ऑब्जर्वेशन है ना, वो कोई भी सीख सकता है। जो स्किल लिखने का वो है, आप रोजाना लिखो, आप 25 दिन लिखो, 26वें दिन कुछ तो लिखाएगा ही। ऐसा नहीं होता कि आप अगर रोज एक दीवार पोत रहे हो बैठ के तो वो पुते ही नहीं रही है। मैं नहीं मानती इस बात को, क्योंकि मैंने ये चीज़ करी है कि हाँ भाई टैलेंटेड है। मैं स्टेज पे चढ़ी थी जब पहली बार, मैं ये सोच के चढ़ी थी कि आज तो खत्म है दुनिया, मैं इतनी फनी हूँ, ये सारे पागल हो जाएंगे, पर नहीं हुए वो लोग पागल। मैं गई, मैंने ओपन माइक में परफॉर्म किया और ठीक ठाक गया, मतलब ऐसा भी नहीं हुआ था कि लोग पत्थर मारने लगे थे, पर मैंने सोचा था कि बस आज तो जनता दीवानी हो चुकी है मेरी, क्योंकि मैं फनी हूँ, मुझे पता है, आई एम वेरी अवेयर ऑफ दिस फैक्ट कि मैं अपने दोस्तों के साथ भी मैं लोगों को हंसा सकती हूँ, एंटरटेन कर सकती हूँ, बट दैट इज़ नॉट अ स्किल। अगर आपको स्टेज पे चढ़ के किसी को हंसाना है ना, तो इट नीड्स सिस्टमैटिक राइटिंग, इट नीड्स योर एक्सपीरियंसेस, इट नीड्स टू मेक योर ऑडियंस फील समथिंग, एंड दैट कम्स फ्रॉम प्रैक्टिस। तो सिखाया जा सकता है या सीखा जा सकता है, 100%। और ऐसा नहीं है कि कोई क्रिएटिव बैल है तो फिर बैल ही रहेगा, एंड कहीं ना कहीं अब सी, जैसे एक्टिंग में भी बोलते हैं कि एक्टिंग सिखाई नहीं जा सकती, पर टेक्निक्स तो बताई जा सकती है ना, कि कैसे आप अपने अंदर की वो भावना निकाल सकते हो। अब वैसे ही अब ये ठीक है, मैं ABCD तो है नहीं किसी के पास जोक लिखने की, यार भाई ये सीख लिया तो तुम बहुत बड़े कॉमेडियन बन जाओगे, पर तुम अपने आप को मोर ओपन टू एक्सपीरियंसेस तो कर सकते हो ना, कि ठीक है यार, मैं अगर आज मैं सीरीज बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे, एयरपोर्ट एटिकेट, डेटिंग एटिकेट, ये सब, ठीक है, तो
मैं जब जाती हूँ एयरपोर्ट में नोटिस करती हूँ आसपास क्या चल रहा है, मैं ऑब्जर्व करती हूँ कि लोग कैसे बिहेव कर रहे हैं और फिर उसमें मैं कुछ पंच लाइन डाल देती हूँ। वो तो आप भी कर सकते हो ना, वो तो कोई भी कर सकता है। यू जस्ट हैव टू पुट योर माइंड टू इट एंड यू हैव टू हैव दैट डिसिप्लिन to put that into words every time it comes to you. Even I used to lack that earlier. मैं सोचती थी हाँ याद है ना, बढ़िया याद रह जाएगा, पर भूल जाते हो आप। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव, मैंने तो कितनी सारी चीज़ें लिखी है और मैंने ऐसी पॉइंटर्स में लिखी, और फिर व्हेन आई गो बैक टू दैट लाइक 1 month बैक, मैं भूल गई हूँ किस लिए लिखा था मैंने ये पॉइंट। वाई डिड आई राइट कि कॉफ़ी मग क्यों लिखा है मैंने, कॉफ़ी मग का आगे भी तो कुछ था ना तब। तो नाउ आई हैव स्टार्टेड राइटिंग पूरा एंड देन आई कीप वर्किंग ऑन इट, री वर्किंग ऑन इट। सो इट इज़ अ स्किल दैट यू हैव टू शो ऑफ फॉर योर सेल्फ। अब टैलेंट तो क्या है यार, मतलब लाइफ के एक्सपीरियंसेस से मुझे तो लगता है सबको, हमने इतना 30 साल की उम्र में इतनी ज़िंदगी देख ली है कि थोड़ा बहुत तो आ ही गया है। अब लग रहा है कि थोड़ा एक्सपीरियंसेस कम हो गए तो अब फिर चल पड़ेंगे कहीं और एक्सपीरियंस लेने पर। उतना यू हैव टू बी ट्रू टू योरसेल्फ एंड शो अप फॉर योरसेल्फ, आई थिंक एवरी डे। 30 सालों में जो अनुभव का अमृत इन्होंने इकट्ठा किया है, और तब जाकर ये ऐसे ज्ञान वाक्य आते हैं। बट शोइंग अप फॉर योरसेल्फ एवरी सिंगल डे मेटिकुलसली, डिसिप्लिन के साथ आप आते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आंचल अग्रवाल ने अपने अंदर रहा हुआ जो टैलेंट है या कॉमेडी का जो जीन है, शायद वो जेनेटिक ना भी हो, लेकिन वो शायद आपसे शुरुआत है उसकी इस परिवार में, उसको लेकर के वो पता है, कॉग्निजेंट है बिल्कुल कि नहीं ये तो है ही मेरे पास, एक इल्म है कि आई नो आई एम फनी। तो ये वो वाला हो गया ना कि जब पता है कि फनी है तब कंप्लेसेंसी आने लगती है कहीं ना कहीं कि पता है हो जाएगा करके, और उस वजह से कभी यू ट्रिप ओवर योरसेल्फ। तो ये कभी हुआ है? बहुत बार हुआ है। इनफैक्ट जो मैंने आपको बताया ना कि मैं घर पे बैठ के बोलती रहती थी कौन यूट्यूब वीडियोस बनाता है, क्योंकि मुझे पता था मैं फनी तो वो ही कर लूंगी किसी दिन, पर किस दिन भाई, कब करोगे तुम? कभी ना कभी तो तुमको शुरुआत करनी है ना। और जो आपने जेनेटिक्स की बात बोली ना, आई ट्रूली बिलीव कि कुछ तो टैलेंट जो है वो जीन्स पे पास होता है। मुझे पर्सनली लगता है कि मैं फ़नी हूँ क्योंकि मेरे परिवार में 60% 75% फ़नी लोग हैं। जैसे मेरे पापा काफ़ी फ़नी हैं, मेरी मम्मी काफ़ी फ़नी है, मेरे कज़िन्स, मेरे जो ताऊजी वगैरह सब बहुत फ़नी। और हम लोग ना मतलब हम लोग ना थोड़े से ठिलवाइये भी है, जो इंदौर में एक शब्द बोलते हैं कि ये ठिलवाई करने में आगे बैठे रहते। सो मच सो दैट हमारे घर पे कोई बहुत बड़ी ट्रेजेडी भी हो जाती है ना, तो थोड़ी देर हम लोग बैठ के उस बात पर रो लेते हैं, पर फिर हम फिर आ जाते हैं घूम फिर के कि चलो एक दूसरे का मजाक बना लिया, किसी की बेइज्जती कर दी या कुछ ऐसा कर दिया। तो वो चीज़ से ना, एंड ऑल्सो इट कम्स व्हेन यू नो, आई थिंक व्हेन पीपल सी अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स और ट्रेजेडीज और यू नो कुछ ज़िंदगी में ऊंच नीच हम लोग जब साथ में देखते हैं ना, तो आपका एक कोपिंग मैकेनिज्म बन जाता है कि आप आपस में एक दूसरे को हंसा के ठिलवाई करके उस चीज़ से आगे बढ़ जाते हैं। वो चीज़ हमारी फैमिली में है, तो हम में ना वो इनहेरेंटली आता है कि कोई प्रॉब्लम हो रही है ना अगर लाइफ में, तो इस प्रॉब्लम का अपन मजाक बना लो तो वो प्रॉब्लम छोटी लगने लगती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट यू नो, you will always see me cracking jokes about very problematic things in my life. If someone is trolling me, I'll crack jokes about that. If I have been dumped by a boy, I'll crack jokes about that. If I'm broke, I don't have money, I'll crack jokes. Because when you start laughing in the face of a problem na, that problem becomes very small. Now you know कि यार इस पे तो हम हंस रहे हैं, इसको तो आराम से ओवरकम कर लेंगे, and then you eventually do it. तो फिर फ्रेंड जोन होना मुश्किल नहीं हो जाता है? I तो think it's my brand only now कि people think that आंचल को global, I think it's my brand only now. मुझे मेरे बॉयफ्रेंड्स फ्रेंड जोन कर देते हैं यार थोड़े टाइम डेट करने के बाद कि नहीं यार तुम तो दोस्त ही अच्छे हो। So I have reached that level of zen in that scene कि भाई ठीक है यार चलो। Someone like you know you ask कि लड़कियां आपसे सलाह, एक लड़की ने मुझसे पूछा था कि हाउ डू यू ओवरकम ब्रेकअप्स। मैंने कहा तुम 10-15 बार करवा के तो देखो, तुमको पता ही नहीं चलेगा। फिर उसके बाद कोई नया होगा सिर्फ भी लेके हाँ अभी पिछले था ठीक है। सो छोटा हाँ, आई थिंक वो ह्यूमर का वो तो थोड़ा सा अड़चन से ह्यूमर की बैसाखी अगर हो साथ में तो फिर वो प्रॉब्लम्स छोटे हो जाते हैं। आंचल अग्रवाल को पता है कि वो फेमस है, आंचल अग्रवाल को पता है कि वो पॉपुलर तो थी ही, और आंचल अग्रवाल को ये भी पता है कि वो सक्सेसफुल बन चुकी हैं। फेमस अगर आप अपने आप को नहीं मानती हैं कि अभी तक मैं फेमस नहीं हूं और अति की कोई गति नहीं होती, तो 100K फॉलोअर्स, 500K फॉलोअर्स, मिलियन फॉलोअर्स, 500 मिलियन फॉलोअर्स, what are the metrics of popularity or success? सक्सेस तो चलो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से आ गया, you've also made this a model of earning for yourself into a full-time profession.
एंड देन व्हाट इज फेमस? इज इट द 100K मार्क? जो कोई क्रिएटर है जो 100K पे अपना कंटेंट बाहर रख रहा है या रख रही है, या फिर इज इट द 1 मिलियन मार्क? सो बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, और मैंने काफ़ी स्ट्रगल भी किया है इसके साथ. आई थिंक सारे क्रिएटर्स ही करते होंगे. जब आप हर रोज़ उठ के ये देखते हो ना कि आज आपको कितने लोगों ने अप्रिशिएट किया है, वैलिडेट किया है, मुझे लगता है वैलिडेट इज़ द वर्ड. आप वो ही सीख कर रहे हो बाहर कि यार कोई इंसान आके बोल दे यार क्या बढ़िया है काम किया है. सो व्हेन यू वेक अप विद दैट थॉट एवरी डे ना, इट बिकम्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. जैसे आप खाना खाते हो, जैसे आप नहाते हो, जैसे आप पूजा करते हो, वैसे ही आप देखते हो कि यार मेरे को आज कितने लोगों ने फॉलो किया है. एंड दैट बिकेम अ पार्ट ऑफ लाइफ फॉर मी ऑल्सो. सो देन यू नो मुझे ऑर्गेनाइज काम करना पसंद है. मुझे पसंद है कि मैं डिसिप्लिन रहूँ, मैं हर रोज़ जितना काम लिख के रख रही हूँ उतना मैं करूँ. तो मैंने भी ऑर्गेनाइज किया था कि यार ठीक है अभी 100K हो चुके हैं तो इस स्पीड पे इतने तब यहाँ हो जाना चाहिए, पर हम स्पीड को अब डबल करेंगे, क्योंकि कंपाउंड भी तो होता है ना कि आपके आज 1000 बढ़ रहे हैं, जब आपके 100 हो जाएंगे तो फिर शायद 2000 बढ़ेंगे हर रोज़. तो मैंने भी वो सोचा. मैंने सोचा था कि भाई 30वां जन्मदिन अपना आ जाएगा 17 नवंबर को, तो तब तक 1 मिलियन हो जाने चाहिए, फिर 1 मिलियन और जन्मदिन की पार्टी साथ में करेंगे. पर ऐसा लग नहीं रहा है कि तब तक हो जाएंगे. बट नाउ आई डोंट वांट इट टू बी. मतलब ऐसा नहीं है कि मैंने ना कह दिया इंस्टाग्राम को कि मुझे फॉलोअर्स मत दो, पर मुझे अब लगता है कि देखो एक संस्कृत में कहावत होती है अति सर्वत्र वर्जते. ठीक है, तो आप 1 मिलियन के बाद फिर 10 मिलियन की चाह होगी, 10 मिलियन के बाद 20 मिलियन की होगी, 20 के बाद 50, 50 के बाद 100. तो वो तो गाड़ी रुकने नहीं वाली है. मैंने रिसेंटली किसी 1.5 मिलियन के फॉलोअर वाले इंसान को अपने स्टोरी में कंप्लेंट करते हुए सुना था. उनको स्टोरी डाली थी कि यार मेरे फॉलोअर बढ़ नहीं रहे हैं और लोग मेरी वीडियोस वगैरह डाल देते हैं और मेरे फॉलोअर नहीं बढ़ रहे, मेरे को लाइक नहीं आ रहा, एंगेजमेंट नहीं आ रहा. और वो जो उनके प्रोफाइल पे जो आ रहा है वो ड्रीम एंगेजमेंट टाइप है. ठीक है कि यार मतलब हाँ ये हो गया तो लाइफ सेट हो गई टाइप्स. एंड देन आई थॉट टू माई सेल्फ कि यार ये इतना परेशान है. मतलब ठीक है यार अभी तो इतनी ज़िंदगी इनकी आगे पड़ी है, अभी तो नया नया शुरुआत हुई है, इनको अच्छा एंगेजमेंट मिल रहा है, सब हो रहा है, उसके बावजूद मतलब समस्या आ रही है ज़िंदगी में. तो मैंने कहा ये तो फिर रुकता नहीं है शायद कभी. मतलब इतना क्योंकि मुझे लगता है कि 1 मिलियन के बाद ठीक रहेगी लाइफ सेट, पर हो सकता है शायद नहीं रहेगी. आज से 1 साल पहले ही मैंने इंस्टाग्राम पे शुरुआत की थी, तब मुझे लगा नहीं था कि 100K भी हो जाएंगे या 200K होने वाले हैं अब, या 200K हो जाएंगे. तो वो तो फिर मतलब वो चलता ही रहेगा. तो आई हैव मेड माई पीस विद द फैक्ट नाउ दैट माई इनिशियल गोल ऑफ स्टार्टिंग अ करियर इन वॉट एवर फील्ड. मैं कभी भी करियर को लेके मैंने अपने आसपास बाउंड्री वॉल नहीं बनाई है कि मुझे यही करना है. मैं बहुत फ्लूइड हूँ. आज हो सकता है अगर मुझे अभी इसमें क्रिएशन में लग रहा है कि अब मेरा हो गया है तो मैं कुछ और करने लगूंगी, क्योंकि I think that is a liberty that I want to keep for myself. I want to do everything in my life, have experiences, meet new people, make new connections, bring change to other people's lives. So hard and fast नहीं है कि यही करना है. But I want to be true to my initial goal, which was to be recognized and to create some value in the society with what I am doing in my work, which I think I have still not done. I have started doing it somehow, but I have still not achieved the kind of change I would want to achieve in the society because of my personal efforts. तो वो चीज़ जो है ना, मैं उस चीज़ को ही मैंने अपना ड्राइविंग फोर्स वापस से बना दिया है. अब मैं नहीं उस चीज़ को नहीं, मैं होड़ नहीं लगा रही मैं कि यार आज इतने फॉलोअर नहीं बढ़े, क्योंकि यार मेरे हाथ में क्या है, कंटेंट बना के डाल देना है. अब तुमको फॉलो करना है नहीं करना है वो मैं किसी का हाथ पकड़ के तो बटन दबा नहीं सकती, और करवा भी दिया तो मैंने बाद में वो अनफॉलो कर देंगे, म्यूट कर देंगे. तो होड़ है वो. मतलब एक वो होता है ना कि आपने अंधे घोड़ों को दौड़ा दिया है और अब वो किसी भी डायरेक्शन में दौड़ पड़ेंगे और वो आसपास के लोगों को भी तबाह करते जाते हैं साथ में. तो वो चीज़ नहीं करनी है वो. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मैंने बहुत जल्दी रियलाइज़ कर लिया. एंड आई होप कि मैं उस पर एक्ट करती रहूँ अपनी ज़िंदगी भर, क्योंकि अभी तो आपने बड़ी बड़ी बात कर ली कि हाँ नहीं नीचे फॉलो. हो सकता है 1 महीने बाद फिर लगने लगे कि नहीं यार चाहिए. तो आई वॉन्ट टू वर्क टूवर्ड्स achieving that in that mind state, in my mind also, that I know कि ये होड़ है जो उसमें नहीं जाना अपने को. बहुत सारे क्रिएटर्स, कंटेंट क्रिएटर्स ये सक्सेस नहीं देख पाते जो आपने देखा है, बिकॉज ऑफ योर हार्ड वर्क, बिकॉज ऑफ योर डिस्कवरी की अरे मैं घर बैठ के ये अगर करती रहूँगी, अगर रोती रहूँ, शौक का श्रृंगार कर दिया मैंने तो उसका कुछ होगा नहीं, मुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा. एंड देन यू वेंट हेड ऑन इनटू इट टिल द पॉइंट वेयर you were completely successful, satisfactorily successful, and also seeking impact
and change in society or in life. You mentioned that you had to take a step back, discover what you were doing. उसका एक प्लेटो आ जाता है, फिर आप कुछ एक नया देते हैं, फिर उसका एक प्लेटो आ जाता है, फिर एक डिस्कवरी. तो जो होड़ एक होती है कि दिस इज नॉट अ रैट रेस, कि जिसमें आप लगे हैं तो दिन सुबह उठकर ये एंड तक ये किया नहीं किया वरना तो फिर तो पाप ही कर दिया. ये सेल्फ डिस्कवरी, सेल्फ री इन्वेंशन सो टू से, जो इनोवेशन कहते हैं, या कुछ ना कुछ नया लाना, आफ्टर फाइंडिंग योर वॉइस, कि मैंने अपना इतनी मेहनत जद्दोजहद करने के बाद मुझे मेरा वॉइस मिल गया था और इसमें भी यार प्लेटो आ गया, तो कितनी थकान होती है? सी, मुझे लगता है कि आपकी वॉइस में कभी प्लेटो नहीं आता, आपके मोड ऑफ एक्सप्रेशन में आता है. क्योंकि आप मेरी वॉइस वही है आज भी जो मेरी 13 साल की उम्र में थी, जब मैंने अपनी मम्मी को पहली बार कहा था कि नहीं शादी वादी नहीं करेंगे, पहले विल डू अदर थिंग्स इन लाइफ एंड वी वांट टू अचीव. और उस समय शायद मुझे कुछ और बनना होगा, शायद वकील बनना था, या हो सकता है डॉक्टर, IAS, कुछ रैंडम जो उस समय चल रहा होगा, मुझे वो बनना होगा. पर मेरी वॉइस हमेशा से सेम ही थी. मुझे ये था कि मैं ना चुप रहने वाले लोगों में से नहीं हूँ. मेरे पास बहुत सारे ओपिनियन होते हैं, मुझे लगता है कि मैं अपने रिस्पेक्टफुली उन ओपिनियन को एक्सप्रेस भी करती हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि उससे मुझे हमेशा बैकलैश मिलता है. सी, इंटरनेट पे क्या है ना कि इफ़ यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट द टाइड, यू आर वाइप्ड अवे. आई डोंट बिलीव इन दैट. मुझे पता है कि अगर मेरा कोई ओपिनियन है तो मुझे उसको डालना है, क्योंकि मैंने फिर मेहनत ही क्यों करी थी. मैंने क्यों अपनी बचपन से लेकर आज तक मैंने इतनी चीज़ों के अगेंस्ट बोला, जाके बात किया, मैं अपने आप को इस मुकाम तक लेकर आई जहाँ मेरे पास कुछ चुनिंदा लोग हैं जो सुनते हैं मैं कुछ कहती हूँ. तो और अगर मैं उसको यूटिलाइज ही ना करूँ तो सी, देखो, एक कंटेंट क्रिएटर जो होता है ना, इन अ वे इन्फ्लुएंसर भी होता ही है. हम सारे के सारे इन अ वे इन्फ्लुएंसर है ही, ठीक है. तो मेरे पास जो 100 के या जितने भी के की मेरे पास लोग, जनता मुझे फॉलो कर रही है ना, ये सिर्फ फॉलोअर्स नहीं है, ये मेरी करेंसी है, जो कि जिनका अटेंशन मेरे पास है. अगर कोई ब्रांड आज आके मेरे से कुछ ऐड करवाता है अपने इंस्टाग्राम पेज पे, तो मुझे ऐड करने के पैसे नहीं देता है, वो मुझे इन लोगों के अटेंशन के पैसे देता है. जहाँ पे भी अटेंशन होता है ना, वहाँ पैसा बनता है. तो इन लोगों का मेरे पे अटेंशन है ना, वो मुझे यूटिलाइज करना है अपनी वॉइस एक्सप्रेस करने के लिए. तो मेरी वॉइस हमेशा मेरे पास रही है. आज तक मुझे कभी ऐसा नहीं लगा यार कि इस चीज़ के लिए मेरे पास हाउ डू आई एक्सप्रेस माई सेल्फ. एक होता है ना कि इफ़ यू वांट टू एक्सप्रेस योरसेल्फ प्रॉपरली, एक बड़ा लीडर्स की एक बड़ी क्वालिटी होती है कि आपको उस तरह से एक्सप्रेस करना है जिस तरह से लोग सुनना चाहते हैं. तो अभी मैं जिस तरह से एक्सप्रेस कर रही हूँ, लोग सुन रहे हैं, हो सकता है कल को उनको किसी और तरह से सुनना हो, तो मुझे उस तरह से एक्सप्रेस करना होगा अपने आप को. तो माई इंटेंशन इज़ कि मैं जो भी कहना चाहती हूँ, चाहे वो रैंडम कोई फनी थिंग हो या फिर समथिंग विच इज़ इम्पैक्टफुल या चेंज मेकिंग, ऐसी कुछ हो, मेरा इंटेंशन है कि मैं कहूँ उस चीज़ को. बट आई ऑल्सो एट द सेम टाइम वॉन्ट पीपल टू लिसन टू मी. तो वो जो मोड होता है ना, बस वो बदलता रहता है कि कभी ट्वीट में कह दिया, कभी इंस्टाग्राम रील पे कह दिया, कभी यूट्यूब वीडियो में कह दिया, कभी किसी की पॉडकास्ट में कह दिया. सो एक वो बस वो उसमें आता रहता है प्लेटो कि यार अब क्या करे, कुछ नया करना है. क्योंकि हाँ, तो वो प्लेटो आने does it always bring more excitement? I think it brings more excitement because वो आपका जो मुंडेन को ब्रेक करता है. क्योंकि ना एज एन आर्टिस्ट आपको लगता है कि यार अभी क्या है, रोज रोज क्या करना है. दैट्स व्हाई आई डिड नॉट लाइक वर्किंग इन टीवी एज मच, क्योंकि रोज रोज मैं सेम ही चीज़ कर रही थी. तो एक वो रहता है ना कि एवरी डे यू वांट टू लर्न समथिंग न्यू टू यूटिलाइज योर डे. तो वो चीज़ ऑफ कोर्स इट्स वेरी एक्साइटिंग कि यार अब कुछ नया ट्राई करना है, चलो लेट्स मेक अ न्यू वीडियो, let's make a new type of video, maybe do like a newsletter content, maybe write long form content, do a podcast or something like that. So that is very exciting, but it is also very I don't know, it's very scary also, because you know when you जब मैं कंटेंट क्रिएशन स्पेस में बच्ची थी ना, नई मैं स्टार्ट करती, कोई मुझे जानता नहीं था, मैं कितनी भी गलतियां कर सकती थी कि अरे ये वीडियो बना कर डाली, नहीं चली कोई बात नहीं, बाद में डिलीट कर देंगे. अब क्या है ना, अब लोग जानते हैं, तो अब मैं कुछ भी ऐसी कुछ फर्जी चीज़ डाल दूँ जो उन्हें पसंद ना आए, मैंने चाहे उसमें कितनी मेहनत की हो, शायद वो रेजोनेट ना करे जनता के साथ, तो वो फिर वो हो जाता है कि यार लोगों का ना अटेंशन स्पैन बहुत कम है आजकल. लोग मौके नहीं देना पसंद करते किसी को कि एक गलती हो गई तो गलत हो गई. और फॉर कंटेंट क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स, ऑल पब्लिक फिगर्स, आपकी सारी गलतियाँ इंटरनेट पे हो रही है जो लोग हमेशा याद रखेंगे. आपने कभी फ्यूचर में कुछ किया तो वो उस गलती को लेकर आएंगे आपको बताने के लिए कि देख तूने 6 महीने पहले ये किया था. तो वो थोड़ा सा स्कैरी है. But I personally think that now that I have taken this decision to, create content on the internet and, showcase my life to people and have a life,
conduct myself in a way that people learn from me, so they should learn from my mistakes also. क्योंकि अब मैं कुछ संत महात्मा तो हूँ नहीं कि कुछ गलती मुझसे होगी नहीं, होती रहती है, हर रोज़ कोई गलती हो जाती है, तो और बिना उनके सीखना भी नहीं होता। कई बार मैं कुछ गलत ओपिनियन डाल देती हूँ, जो कि मैं अपनी तरफ से बहुत वे करके डालती हूँ कि हाँ भाई, मतलब इधर से भी देखा मैंने, इस तरफ का भी सोचा और डाला है। उन लोगों के पास और एडिशनल उसका कुछ होता है, तो अगर मैं वो नहीं डालती तो मुझे पता नहीं चलता ना वो चीज़ है, वो थ्रेटनिंग है, स्कैरी है, पर एक्साइटिंग भी है। एंड दैट आई थिंक itself is a journey that you want to live, and then maybe 5 years down the line you want to look back and see यार मैं कितनी बच्ची थी तब जब मैंने वो पहला वीडियो बनाया था, मैं कितनी बच्ची थी, क्या बनाया था। अब देखो मैं 300 वीडियो बना चुकी हूँ, तो अब मेरे 301वें वीडियो में कितनी मैच्योरिटी आ चुकी है, कितना चेंज आ चुका है। तो कभी वो पुराने वीडियोस जाकर कभी डिलीट किए? नहीं, मैं कुछ नहीं डिलीट करती। मैं कुछ एज इन कुछ ऐसा रैंडम कुछ डिलीट कर सकती हूँ मैं, जो मैंने ऐसे ही रैंडमली डाल दिया था जिससे मैं कुछ व्यक्त नहीं करना चाहती थी, पर मैं कुछ नहीं डिलीट करती। अगर मैंने कोई ऐसा भी वीडियो बनाया है जिससे लोगों को आपत्ति हो रही है, जिससे लोगों को लग रहा है कि नहीं यार ये आंचल को नहीं कहना चाहिए था, तो आंचल ने तो कह दिया है। अब देखो, क्योंकि आंचल को कहना था तो वो तो कह चुकी है। अब तुम्हारे पास इस चीज़ के लेकर कुछ और आपके पास ओपिनियन है, आप वाद विवाद करना चाहते हैं, आप करिए रिस्पेक्टफुली, कमेंट्स में आपको जो कहना कहिए। हमने कुछ गलत कहा है तो हम आके माफ़ी भी मांग लेंगे, पर आप पहले साबित तो करिए कि कुछ गलत कहा है। मैं यूजुअली नहीं कहती ऐसी कोई चीज़ जिससे किसी इंसान को ठेस पहुँचे, या मैं कुछ ऐसा वन साइडेड भी यूजुअली नहीं कहती हूँ। मजाक मस्ती की बात अलग है, जोक्स की बात अलग है, पर अगर मैं अपना सीरियसली कोई ओपिनियन रख रही हूँ, मैं नहीं कहती यूजुअली कुछ ख़राब बात। मैं बहुत काइंड इंसान हूँ, मैं बहुत एम्पैथी से लोगों के साथ बात करती हूँ, तो मैं ऐसी चीज़ें नहीं कहती, पर मैं नहीं डिलीट करती। आप देखिए, अगर मेरे इंस्टाग्राम पे भी कई मेरे कुछ स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाले वीडियोस मैंने कई बार डाले हुए हैं, उनमें नीचे लोगों ने बहुत भद्दे भद्दे कमेंट्स किए, मैं वो भी नहीं डिलीट करती, मैंने थोड़ी कहे हैं। तो उन कमेंट्स की विधानसभा में जब आप एंगेज करती हैं इन लोगों को या जवाब देती हैं, do you consciously do that out till a point, or is it your team that does it for you? No, so my team doesn't do all these interactions for me, मैं खुद करती हूँ, पर मैं सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ करती हूँ जो गाली गलोच नहीं करते हैं। आप अगर मेरे कमेंट्स में आके मुझसे गाली गलोच कर रहे हैं, तो या तो मैं आपको ट्रोल कर दूंगी, अगर आज मेरा मूड बड़ा जॉयफुल है तो फिर मैं आपके मजे लूंगी, उसमें भी मैं कभी किसी को गाली वाली नहीं बकती, वो सब मैं नहीं करती। पर ये ज़रूर है कि अगर आपने मुझसे रिस्पेक्टफुली कुछ ओपिनियन मेरे देखिए, अब मैंने कहा है ये टेबल ब्लू है, तो आप कह सकते हो ना हरा है, तो ऐसा होता है ना, तो मैं बात करूंगी आपसे। पर आप मुझसे गाली गलोच अगर करोगे तो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे अपने खुद के रिस्पेक्ट को उतना नीचे नहीं गिराना है कि आप लड़ाई झगड़ा कर रहे हो मेरे इतने मेहनत से बनाए हुए कंटेंट पे, और मैं आपको उस चीज़ पे अटेंशन दे रही हूँ। पर पूरी दुनिया को सुधारना मेरा भी काम नहीं है, ठीक है। आई एम अ टाइनी पर्सन विद सम लास्ट श्रेड ऑफ मेंटल हेल्थ रिमेनिंग इन माई माइंड, तो मैं भी उसी पे झूला झूल रही हूँ। तो जितनी मुझसे होती है मैं कोशिश करती हूँ कि मैं बात करूँ, एंगेज करूँ, कमेंट का जवाब दूँ, लोगों को बताऊँ कि वो जो कह रहे हैं वो क्यों गलत है। पर आफ्टर अ पॉइंट इन टाइम कि अब अपना भी हो जाता है ना कि यार अब मैं कितने लोगों को बताऊँ, और फिर आपको अगर सीखना है तो आपको भी थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। किसी ने कमेंट किया यार ये तो गलत बोल दिया आपने, ऐसा नहीं ऐसा होता है, मैंने आपको रिप्लाई कर दिया, बाकी 10 लोग भी सेम कमेंट कर रहे, तो ऊपर वाला पढ़ लेना भाई। कितनी मैं मेहनत करूँ हर इंसान को जाके जवाब देने की। बट मुझे पर्सनली पसंद है, मुझे पर्सनली कमेंट्स का जवाब देना पसंद है, मुझे पर्सनली ट्वीट्स का रिप्लाई करना भी पसंद है, क्योंकि व्हाट आई बिलीव थ्रू माई इंटरनेट, व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम क्रिएटिंग अ कम्युनिटी। अगर मैं सिर्फ कंटेंट डाल के दफ़ा हो जाऊँ तो फिर वो कम्युनिटी नहीं बन रही ना। मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे एंगेज करते रहे। मैं डीएम्स का भी जवाब देती हूँ लोगों को। लड़कियाँ मुझसे रोज़ाना पूछती रहती है कौन सी लिपस्टिक लगाई है आपने, कौन सा आई शैडो लगाया है, वो सब मैं सबको जवाब देती हूँ कि देख लिया है तो जवाब दे देंगे। बट गलतियाँ तो हो रही है, देखो इंटरनेट पे हमसे भी होगी, लोग गाली भी बकेंगे ही। तो इन द वर्ल्ड ऑफ कॉमेडी ऐसा हो गया है कि कहीं ना कहीं जोक के बीच में गालियाँ हुआ करती थी, पहले तो नहीं ही हुआ करती थी, अब गालियों के बीच में कहीं ना कहीं जोक बचा कुचा रह जाता है। What is your take on that? I think everyone has, मतलब सबका अपना अपना मेथड है, सबका अपना अपना कंटेंट है, तो जिसको जैसा अपनी see in the end it's all about expression, it's all about कि what is it, what thoughts do you have in your mind and what thoughts you are expressing। तो आप कुछ भी वे चूज कर सकते हो इसमें। मतलब मुझे पर्सनली नहीं लगता है कि इन अ कॉमेडी रूटीन गाली यूज़ करना या गाली ना यूज़ करना
आर एनी डिफरेंट, कि मतलब किसी को ज़्यादा रिस्पेक्ट मिलना चाहिए, किसी को कम. ये ज़रूर हो सकता है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन बीइंग अ हैक एंड देयर इज़ अ डिफरेंस बीइंग वर्किंग ऑन योर कंटेंट, वर्किंग ऑन योर आर्ट, योर जोक. तो वो 2 चीज़ें होती है, बट वो बिना गाली के भी हो सकती है. सो यू नो, एक बहुत इंडस्ट्री में भी ये चला है कि अरे ये XYZ कॉमेडियन तो सिर्फ गाली बकता है, ये XYZ कॉमेडियन सिर्फ गाली बकती है, या जो भी. मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये सारे ओपिनियंस तो हर चीज़ के लिए हो सकते हैं. तो एक वो है कि आप किस तरह से अपनी बात कहना चाहते हो. अब हम उस चीज़ को लेकर इतना सेंसिटिव नहीं हो सकते यार कि गाली कैसे बक सकते हो आप कॉमेडी में, या फिर नहीं यूज़ करना चाहिए. आपका अपना एम क्या है, कौन आप अपना टारगेट ऑडियंस रखना चाहते हो, आप किस तरह की ऑडियंस को सुनाना चाहते हो. और सी, प्रोफेन लैंग्वेज has always been something that, you know, people have associated machoism with. People have been like कि लड़कियां गाली नहीं देती, लड़कियां ये नहीं बोलती. तो वो भी एक तरह से ना लोगों ने गार्ड किया हुआ है कि आप उस चीज़ को इस्तेमाल नहीं कर सकते. बट ऐसा नहीं होता है, मतलब लड़कियां भी दे देती है गालियां, और इट हैज़ नथिंग टू डू विद वंस जेंडर. तो गाली गलोच कंटेंट में है या कंटेंट गाली गलोच में है, वो सब चीज़ें सब्जेक्टिव है. हो सकता है कि कई चीज़ें जैसे इंजीनियरिंग जोक्स जो है कई सारे लोगों को रिलेटेबल लगती है, हमारे पास कई सारे इंजीनियर्स हैं, वो चीज़ चलती है क्योंकि उस चीज़ को लोग कंज्यूम करते हैं. तो there you can be someone who wants to make content which is consumable. You can be someone who wants to make content which goes, you know, which surpasses the years you live, and you know, which goes on to eternity, like how we have our poets and how we have, like, you know, our literature writers and all. तो वो आपकी पर्सनल चॉइस है. मुझे पर्सनली नहीं लगता कि एक चीज़ दूसरे से बेहतर है. तो which is Aanchal? Is she in the जो आर्काइव किया जाने वाला कंटेंट है वो है, या फिर ये? मैंने ऑनेस्टली सोचा नहीं है कि मैं किस तरह की लेगेसी छोड़ना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ माय कंटेंट. वो मैंने सोचा नहीं है पर्सनली. पर मैं यूजुअली नहीं करती गाली गलोच अपने, मतलब मैं यूजुअली प्रोफेन लैंग्वेज या मैं किसी गाली का सहारा नहीं लेती अपने कंटेंट में. कई बार ले भी लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रूल है, पर मतलब मेरे 300 वीडियो में से शायद किसी 1 या 2 वीडियो में आपको शायद कुछ ऐसा मिल जाए जो कि थोड़ा सा उस पार हो. बट यूजुअली मेरा थोड़ा सा ऐसे ही रहता है कि यार कोई बच्चे ने अगर घर में चालू कर लिया, 13-14 साल के बच्चे देखते हैं यार, अब उनने घर में अपनी माँ के सामने कुछ खोल लिया तो ऑकवर्ड ना हो जाए माहौल. तो मैं चाहती हूँ कि थोड़ा चिल मामला रहे, ज़्यादा ना सोचना पड़े आपको, ना आपको कान बंद करना पड़े या हेडफोन्स लगाने पड़े. सब जितना ईजी बना दो आप उनके लिए चीज़ देखना, उतना आपके लिए अच्छा है. तो वो है कि the more convenience you give them, the more engagement they give you. So this is what I believe in. So the Spitfire Aanchal Agarwal, the rebellious Aanchal Agarwal, off camera गालियां देती हैं? मतलब आप दोस्तों के साथ तो मतलब आपका अलग रवैया होता है बात करने का, घर वालों के साथ अलग रहता है. हर इंसान के साथ अलग रिलेशन रखता है ना. तो ऑफ कैमरा तो दे देते होंगे हर इधर उधर कहीं ना कहीं. मतलब इतना मैं नहीं हम साथ है कि मोनिश बहलू की कुछ मतलब एकदम जी पिताजी और वो वैसे नहीं हूँ. हो जाता है कभी कभी. कन्फर्मिस्ट पेट्रियार्की तो वैसे भी. हाँ, तो उतना नहीं है, ठीक है, थोड़ा बहुत तो निकल ही जाता है. The industry that you work in, Aanchal, is a rapidly growing industry. और उस इंडस्ट्री का जो वर्ड है वो इंडस्ट्री भी वायरल ही है. तो क्या इस इंडस्ट्री में जेन्युइन फ्रेंडशिप्स हैं? क्या इस इंडस्ट्री में टांग खिंचाई है? क्या इस इंडस्ट्री में जो आपने 1 साल में जो अचीव किया है या जो देखा है, अनुभव किया है, what is the माहौल like? मुझे ऐसा लगता है कि ये भी हर दूसरी इंडस्ट्री की तरह ही है. जैसे आपको पता होगा एक्टर्स कैसे होते हैं, कॉमेडियंस कैसे होते हैं, आई थिंक कंटेंट क्रिएटर्स भी सेम ही है. मतलब इफ़ यू सी, ये जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हम लोग हैं, हम लोग कुछ ना कुछ और कर रहे थे. अभी 2-3 साल पहले तक सब कुछ और कर रहे थे. ये सब ने बस डिस्कवर किया है, फिर लोगों ने साइड हसल जैसे शुरू किया, फिर अब लोगों ने फुल टाइम शुरू कर दिया. तो वी आर ऑल द सेम पीपल हु बिलोंग टू द अदर इंडस्ट्री. सो हाउ अ ह्यूमन बिहेव्स विद अदर ह्यूमंस इज गोइंग टू बी द सेम irrespective of what industry they are in. मैं इस चीज़ को इतना ज़्यादा अच्छे से या फिर मतलब एकदम आपको सही सपाट आंसर नहीं दे सकती, क्योंकि मैंने शुरू किया था कंटेंट बनाना पैंडेमिक के दौरान. अभी भी पैंडेमिक चल ही रहा है. अभी तक मैं ज़्यादा क्रिएटर्स से मिली नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है कि क्रिएटर्स का आपस में कैसा मेल जोल रहता है या वो किस तरह से सोशलाइज करते हैं. बट
आई हैव बीन लकी टू, मैं डिजिटली कई लोगों के साथ जुड़ी हुई हूँ जो लोग मेरा कंटेंट मेरे कहने पे या शेयर कर देते हैं या खुद से भी शेयर कर रहे होते हैं. कई लोग ऐसे हैं जिनको मैंने नोटिस किया है जो सेल्फलेसली दूसरों का कंटेंट लाइक करते हैं, उनके साथ एंगेज करते हैं, यू नो, बिकॉज दे नो how difficult it is to make in the, you know, this cutthroat content industry that now that every second person is a content creator. So there are some people like that. So हर जगह दोनों तरह के लोग होते हैं. So there is nothing, ऐसा कोई सेट अलग से प्रोटोकॉल नहीं है कि कंटेंट क्रिएटर्स कैसे बिहेव करते हैं. तो मेरे ज़्यादा दोस्त है नहीं कंटेंट क्रिएटर्स, तो मुझे पता नहीं है. हो सकता है जब दुनिया जो है वो वापस से नॉर्मलाइजेशन पे आ जाए, हम फिर बाहर निकल के काम वाम करने लगे, शायद मेरे पास हो, फिर मैं आपको बेहतर जवाब दे पाऊँ. फिलहाल मुझे नहीं पता. पर मैं दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स को, मैंने कई लोगों को देखा है जिन्होंने अपने एक ट्राइब बना रखी है, जो साथ में कंटेंट बनाते हैं और जो साथ में एक दूसरे का कंटेंट शेयर करते हैं. तो है उस तरह की फ्रेंडशिप्स भी है. Collaborative friendships, symbiotic friendships for now. So Aanchal, as you said, observation is key, especially for content creators and comedians as well. किसी भी आर्ट में, किसी भी आर्ट के लिए observation is critical and central. तो observation को छोड़कर, observation तो obviously है ही, लेकिन observation के अलावा what is that that inspires you? कोई news है, is there somebody specific जो inspire करता है, करती है in your rants, in your opinions, in your reflections that you post? Where do you draw inspirations from, or do you look up to somebody? I don't know, maybe I draw inspiration from wanting to earn money. Well, yes, that's a very big I don't know really from where do I draw inspiration other than, you know, the observations that I have. It's just that, you know, you want to make a difference every day. You know, every day you're waking up, you're doing, you are supposed to do something. This is how we were brought up as, you know, young children, कि रोज उठकर कुछ ना कुछ तो हासिल करना है, कुछ अचीव करना ही है. तो आई थिंक एक तो वो है, और दूसरा एक मैं बहुत ओपिनियनेटेड इंसान हूँ. मुझे कई चीज़ों के बारे में मेरे पास बहुत टिप्पणियाँ रहती है चलते फिरते. मेरे मन में ख्याल आते रहते हैं कि अच्छा ये हुआ है तो ऐसा भी तो हो सकता था, ये ऐसा हुआ है तो ये उससे रिलेटेड है जो पहले हुआ था. तो वो सारी चीज़ें मेरे मन में बड़े ख्याल चलते रहते हैं. तो किसी ना किसी तरह तो निकालना ही है, तो व्हाई नॉट जेनरेट रेवेन्यू आउट ऑफ इट. तो वो आई थिंक वो ही है बस. ऐसा मतलब ऐसे मेरे पास कोई बहुत बेहतरीन जवाब तो नहीं है इस बात का कि कुछ मतलब बहुत बड़ी या तो ट्रेजेडी हो गई हो जिसने मुझे बदल के रख दिया और जोड़ दिया हो. ऐसा नहीं हुआ है कुछ. स्वयं प्रकाशित भी होते हैं कुछ लोग. तो आई थिंक इट्स जस्ट द फैक्ट दैट आई वांट टू create something out of my time. I want to get recognized by people. I want people to know who Aanchal Agrawal is and what she stands for, how she conducts herself. So I think it's just that. लोगों की बात की आपने, रिकॉग्निशन की बात की, तो काफ़ी कुछ लोग रिकॉग्नाइज करते हैं DMs में, और DMs में बहुत सारे प्यार भरे खत भी आते हैं कभी कभी. और भले ही उसमें फिर एंड में दीदी लिखा हो या वैसे संबोधन किया हो जो आपने कई बार पोस्ट भी किया है, उस ऑक्सीमोरॉन को, प्रपोजल व्हिच एंड्स विद दीदी. तो is there an answer to all these people? Should we already tell them? Is there somebody that Aanchal has in her life? I think the answer all my followers already know. मैं एक तरफा आशिक हूँ और मैं हमेशा एक तरफा आशिक ही रही हूँ. तो ऐसा मतलब वो तो मतलब सेलिब्रिटी क्रश तो ऑब्वियसली इवन मेरिल स्ट्रीप भी जब कभी मेरा DM पढ़ेंगी तब वो. अच्छा, आपने उनको DM किया हुआ है? चलो, मतलब मैं अकेली नहीं हूँ जो मैं अपने सेलिब्रिटी क्रश को परेशान कर रही हूँ. नहीं, वो तो मतलब एक तो उम्मीद रख ही सकते हैं कि कभी तो देख लेंगे, जब ही कभी. खैर, क्या पता वो देख चुकी हो ऑलरेडी. नहीं तो वो टिक आ जाता ना, वो सीन आ जाता. नहीं, अब वो आपको ओपन नहीं करेगी जब तक सीन नहीं आएगा. सी मैं इसी में बिलीव करती हूँ. मैं किसी को भी DM भेजती हूँ ना, मैं बिलीव करती हूँ हाँ इसे देख लिया है, पर ये जवाब देने के लिए वेट कर रहा है, शायद कभी ना कभी करेगा. सो सी आई रियली थिंक दैट यू हैव अ चांस विद मेरिल स्ट्रीप इफ यू आर इन हर टेरिटरी. इट्स जस्ट दैट शी डजंट नो यू एग्जिस्ट. इफ शी नोज यू एग्जिस्ट, you have a chance. Typically ऐसा होता भी है कि when you exist in that universe and then you build yourself up to a point where you're finally interviewing that person and then you can tell them that you've not checked your DMs. But khair, but jokes apart, is there anybody other than the celebrity crush that ये जो एक तरफा प्यार होता ही है? Not really. Not really? I don't know if there is anybody. See, there are many, there are
many buddies, but do they know that they are there? That is the problem. Is there any, so there are many buddies that know it's that just there are- me being one-sided lover and like, you know, this see, I don't want to give away मेरी जो ये उपाधि है जो मुझे जनता ने और मेरे पुराने सारे क्रशेस ने दी है, जो मैं ग्लोबल एम्बेसडर ऑफ फ्रेंड जोन हूँ, कि हर इंसान मुझे फ्रेंड जोन कर देता है, तो मुझे नहीं चाहिए कि मैं वो छोड़ दूँ इतनी आसानी से. जब तक इसका असली हकदार मुझे हासिल नहीं होता, मैं वो गद्दी देना नहीं चाहती किसी को. तो अभी तक जो एक तरफा प्यार है, कभी उसका जवाब कहीं से आते रहते हैं, फिर वो भी फ्रेंड जोन कर देते हैं, वो भी कर देते हैं, कर देती हैं. नहीं, मैंने किया होगा किसी को फ्रेंड जोन, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करती, पर मैं ज्यादा हुई ज्यादातर, मुझे ऐसा लगता है. अच्छा, या कि फिर भी उम्मीद जिंदा है. उम्मीद पे तो दुनिया कायम है. उम्मीद तो चल, मैं तो आपसे कह रही हूँ ना कि मैं आपसे कह रही हूँ कि किसी भी इंसान को आप इस दुनिया में जो है हासिल कर सकते हैं, अगर आप अपने आप को उनकी टेरिटरी में रख दे तो. क्योंकि सी, everyone is an ordinary human being in the end. Even Meryl Streep with her so many Oscars. But it's just that तो बाद में एक मतलब मोहब्बत तो अलग चीज होती है. She doesn't know that if you were in her territory, maybe she, who knows? I do believe in that. बेवर्ली हिल्स के बंगले के बाहर जाकर तांडव जब तक मैं नहीं करूंगा, तब तक उन्हें पता नहीं चलेगा कि मैं एग्जिस्ट करता हूँ. मैं बिलीव करती हूँ कि ये सारी चीजें हमें करना चाहिए. as long as we are not being like, you know, legally हम लोग स्टॉकिंग के उसमें नहीं आ रहे, तब तक हमें करना चाहिए. डीएम्स करते रहना चाहिए लोगों को, उनको ऐसे टैग्स करते रहना चाहिए उनकी अचीवमेंट्स पे, विंस पे. कभी ना कभी तो देखेंगे कि यार एक मुंबई के किसी कोने में एक आशिक है हमारा. थैंक यू फॉर द मोटिवेशन. स्पीकिंग ऑफ लव, व्हाट इज लव? Baby don't hurt me. Baby don't hurt me. So, no more. See, there are two songs that I have to sing every time someone gives me a cue. So what is love पे Baby don't hurt me मुझे करना ही होता है. बिल्कुल. And when someone says oh God, उसके बाद मुझे तुसी ग्रेट करना ही होता है. There was this one film by सलमान खान और अमिताभ बच्चन, उसका गाना था oh God तुसी ग्रेट हो. तो if you say oh God like तुसी ग्रेट हो, तो बच जाता है. वो reflex action है. But what is love? I don't know. I think it's just companionship, like, you know, two people accepting each other's darkness. सब में होती है थोड़ी बहुत. आपको वो इंसान मिल जाना चाहिए जिसकी आपको ठीक है यार इसका चला लेंगे. So I think it's just that you having a companion you can look up to it, and I think having like a sorted love life and having a companion that you can go to every day, every night, wherever you want, makes you confident in other aspects of your life as well, because you know कि ठीक है यार कुछ भी हो जाए, we are taken care of. कि कुछ विपदा आन पड़ी, कुछ मसला हो गया जिंदगी में, तो कोई है. So Aanchal, the sole purpose of this interview is to know the individual behind the icon, जो मैंने आपको बताया. एक ऐसी इंडस्ट्री जो बहुत ही बडिंग है और बहुत सारे एस्पिरेशंस लेके आजकल लोग आते हैं. एक ज़माना हुआ करता था जब बच्चों को पूछा जाए कि उनको क्या बनना है, तो आगे जाके वो बोलते थे या तो प्रधानमंत्री बनना है, या फौज में जाना है, या जैसे आपने कहा लॉयर बनना है, या एक तभी कुछ गोल्स हुआ करते थे. लेकिन आज के बच्चे स्कूल में, कॉलेजेस में सोचते हैं कि नहीं, हमें एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना है, या हमें एक डिजिटल कंटेंट क्रिएटर बनना है. जो आपने कम समय की अवधि में, विथ ऑल द स्किल्स एंड टैलेंट्स दैट यू पोजेस्ड, यू वर्कड ऑन देम एंड देन यू गॉट टू वेयर यू आर. क्या वर्ड्स ऑफ विजडम, क्या पर्ल्स ऑफ एडवाइस देना चाहेंगी उन लोगों को, वुमन और अदरवाइज, जो ये करना चाहते हैं? I think be authentic is what I would like to say to all budding creators and even the ones who are already there. Because if you keep doing what others are doing, if you keep doing what is working, you are not authentic to yourself. You have to find your own voice, what is true to yourself, to be able to communicate that to your audience. क्योंकि इंटरनेट पे ना लोग कंटेंट नहीं फॉलो कर रहे, इंटरनेट पे लोग पर्सनालिटीज फॉलो कर रहे हैं. आज अगर लोग मेरी पर्सनालिटी पसंद करते हैं तो कल मैं इस तरह का कंटेंट ना बना के कुछ और भी बनाऊं, वो मुझे एक्सेप्ट करेंगे. तो जो कंटेंट भी बन रहा है ना, ये इट इज़ नॉट हाउ इट मेक्स यू लाफ, हाउ इट मेक्स यू स्माइल, क्राई, थिंक. I think it is in the end about how it makes you feel. If you can feel the authenticity in someone, it is communicated and that person then connects you. It's like creating a community. So you have to make that person feel welcomed in your community. And that you can do only when you are being authentic to yourself. The second thing I would like to tell all budding creators, established creators as well, that your following is your currency. It is not something that you have to take for, you should take for granted, you should take lightly.
आपके पास इतना बड़ा पावर है लोगों की अटेंशन का. You have people's attention and you can use that attention to bring a lot of changes, whatever change you stand for. It is not just to sell कि भाई एक साबुन की टिकिया बेच दी, चिप्स का पैकेट बेच दे. It's not just for that. It is to bring about a change. If someone is calling you an influencer, it is because you are influencing people. आप वो बहुत सारी चीज़ों के लिए कर सकते हो. You can stand up for what is right, what you think is right. You can bring a change in the community by, you know, voicing your opinions. You can help people in the times of, you know, crisis or something like that. So second is that, and third is take care of yourself. It is really scary to live your life on the internet, to put yourself out there in the public eye and make mistakes there. Because, you know, हम आजकल देख रहे हैं 15-16 साल के बच्चे इंटरनेट चलाने लगे, वो कंटेंट क्रिएटर बन चुके हैं, अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है that, you know, they are getting the opportunities in such young age and they know what they want to do and they making such good use out of it. But teenagers ही होते हैं. You will end up making mistakes on the internet, even me, even someone who's elder to me, and that is really scary. So you should always take care of yourself in a way that these things, you know, do not come back to hound you. You should have your, you know, the substance in your heart, in your mind to a level where these things do not trouble you as more than they should. चीज़ें आपको क्वेश्चन करेगी, आपको अपने आप को क्वेश्चन करना है, चेंज लेके आना है, बट you know, just be so true to yourself, so authentic that all these, you know, all these things become a noise, white noise to you, and you just like, you know, cut it out. So yeah, these are the three things I think. Thank you. I think these are very valuable. And ladies and gentlemen, Aanchal has done all that she has already said. She has obviously, as she said, made an economic benefit out of what she is doing as an influencer, but she also made use of her position of power that she has कि वो influencer बनकर कोविड असिस्ट ग्रुप्स में वो कार्यरत थी. उन्होंने बहुत लोगों को मदद पहुंचाई है, मदद की है. Where do we see the Aanchal Agarwal in the next few projects और जो upcoming near future में where will we see you? I think you'll keep seeing me on your mobile screen for really long. That I'm very sure about. तो मैं आपके Instagram, आपके YouTube, Twitter feed पे तो आती ही रहूँगी. That you will keep seeing me there. Any near and dear projects जो अभी होने वाले I am starting my own YouTube channel now. So अभी तक मैं सिर्फ Instagram और Twitter पे content बनाती थी. अब मैं अपनी YouTube channel शुरू कर रही हूँ. I am building a podcast for myself where, you know, I want to talk to people about, you know, their journeys and their learnings in life and have fun with them, just like, you know, casual chat you have with a friend. So मैं अपना YouTube शुरू कर रही हूँ. I am trying to make vlogs जो कि बहुत आसान लगता है पर बहुत मुश्किल काम है. मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ. And I also want to bring international sports to India, like, you know, sports which are not that well recognized in India, like motor sports, NBA, basketball. ये सारी चीज़ें मैं चाहती हूँ कि इंडिया में और लोगों को पता हो इसके बारे में. And that will also create many opportunities for people in India. That will also give, you know, young generation of India an opportunity to, you know, seek a career in those areas. जो कि मैं जब बच्ची थी मुझे नहीं पता था कि मैं एक रेसिंग कार ड्राइवर भी बन सकती हूँ. आजकल के बच्चों को ये सारी चीज़ें पता है. तो आई वॉन्ट टू क्रिएट, लाइक, यू नो, आई वॉन्ट टू ब्रिज द गैप बिटवीन एस्पिरेशन एंड अपॉर्चुनिटी फॉर देम, सो दैट, यू नो, इफ दे नो अबाउट द स्पोर्ट, if that sport gets some economic benefit out of India and Indians, I think they will eventually want to come here and they will eventually want to expand their business there. So I really want to bridge that gap, and that is what I'm aiming to do in the next couple of years, and I'm working really hard to do that. So वो एक चीज़ है. Other than that, I want to start a foundation of my own to help people economically and with resources. Any specific group of people? Mostly women. I really want to help women from, you know, specifically smaller towns, because not just that they are sometimes economically, you know, behind others, or you know, there is a certain gender discrimination. I think in terms of exposure also they don't know much because, you know, things reach late. तो मुझे उनके लिए I really want to start a foundation also that will, you know, bridge the gap for them in terms of how they can use their skills, how they can market themselves in order to get a career of whatever they choose, whatever talents they possess, and make a living out of it. So these are the two things that I'm very passionately working on right now. That is marvelous. ये है वो चेहरे जो भारत का भविष्य बदलने वाले. फिर वो चाहे एक संघर्ष इंटरनेट पर जो संघर्ष किया है वहाँ से लेकर सफलता तक
का जो सफ़र रहा है वो भले ही देश के बाहर ले जाए और वहाँ से वहाँ पर भी क्रांति करके भारत के लिए वो दोबारा लौटें और स्पोर्ट्स के थ्रू, एंटरटेनमेंट के थ्रू और वुमेन एम्पावरमेंट के थ्रू भारत का भविष्य बदलें। इसी मनोबल को हम सराहते हैं और आंचल बहुत बहुत शुक्रिया। आई एम श्योर अ लॉट ऑफ पीपल विल गेन ट्रिमेंडस इंस्पिरेशन फ्रॉम इट। अलविदा, तब तक हम बातें करते हैं इनसे हाउ टू डील विद ट्रोल्स। चीयर्स।